Everyone. So let me quickly cover up the last day's topic that we were discussing about the pandas. I know that some of you were not able to join yesterday's session. I know it's Sunday. I'm not talking about everyone because some of you are regular but not present in the last class. So I'm revising the topic a bit. Let me share my screen. Rest the lecture will also be uploaded on YouTube. You can check it. We'll upload it by 9 p.m. today. Okay, so while discussing the pandas, the two important things that you have to focus about. One is the data structure of it. What is the data structure that we use in pandas? As I mentioned in the last class, here there will be two data sets that we will be using. One will be one dimensional and the second two dimensional. But as we were also doing it the same in the NumPy as well, that we were creating the one dimensional array, the two dimensional array, but here there will be one additional thing that will be the labeling, that you can label the elements like rows and columns. So first thing will be series, one data structure will be series, and then second will be data frames. And in series, the data that we will be providing will be in the frame format of a list. You can put it in a dictionary as well, you can put it as an normal integer as well. You can put three to four types of the data. I have given all the examples in the last lectures. You can check that. But in the data frame, what you have to focus about, you have to focus about the tabular data. Okay. So whatever we will be giving as an input in pandas in data frames, that will be the tabular data. Tabular means it is in the form of a table. Okay, and again, I explained it a lot regarding the tables, the two types of the tables, how like periodic, non-periodic, that you can see the last lecture. But what we have to focus as of now, because in today's lecture it is also required, that is data frames and the series. Series is one-dimensional data set that we use in pandas, and the data frame is two-dimensional tabular data that we use in pandas. I will start with the examples directly. And coming to the topics that we're going to discuss today, I guess we have also worked on the operation that we generally use in pandas, that how to get all the data in a single function. Like we were using the info function in the pandas that can give you the info of the whole data. I have shared two examples as well with you. It was a data of I guess around 10,000 and it was around 2,500. Two data sets that I have shared in the group. You can check them as well. I was having that. Either if you can check, I'm not sure, but I'm sure that you can find it on Google. Simrat, did you find it? Did you find something, Simrat? सर आपने शेयर किया था तो मैंने नहीं ढूंढा, मैंने फिर वही देखा. Shabash. But it was with me for a test model, so that way I shared it with you. But still, try to find a normal data, because what I shared, it is having a lot of columns. Lot of columns will create you confusion while you will be using the data frames. So that why. But if you want, then delete rest of the columns. Create a new file. Okay, you can use that data as well. So let me share my screen quickly. I actually couldn't do it since I have been preparing for triple since yesterday. No worries, Mohammed. You can share the Abid will share the YouTube lectures by today evening. You can check it there. And rest, I haven't completed the all topics of the pandas. So some important topics are still to be completed that I will complete in today's lecture. Don't worry about it. Okay, let me share my screen quickly. And pandas and numpy, again I'm repeating it
I repeated in the last lecture as well. NumPy and Pandas are like, both of them are the key component of data science, but NumPy is more focused on the numerical values as we are working on the mathematical operations. But when we are talking about the pandas, here we will be like कि आप एक अकाउंटेंट हो और फिर आपके पास बहुत सारा डेटा एंड यू हैव टू डू लॉट ऑफ एनालिसिस इन द डेटा कि सैलरी मैनेज करनी है, किसी की एज मैनेज करनी है, सैलरी मैनिपुलेट करनी है, सैलरी चेंज करनी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कैसे करते हैं वो सब आप लेक्चर में देखना, कैसे हमारे पास डेटा खुद ही बन के आ जाता है। ठीक है। ओके, so today what we have to cover, we have to cover the sorting, like sorting of the data. For example, आपके पास जो डेटा है, आप रोज में शॉर्ट करना चाह रहे हो, कॉलम्स में शॉर्ट करना चाह रहे हो, कल बताया था बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अगर शॉर्टिंग करनी है तो आप कैसे करते हो। लुक, सो ये एक हमारे पास, हमने सबसे पहले ये जो डेटा है हमारा, ये क्या है, एक डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी विथ लिस्ट। जो वैल्यूज है इसकी वो लिस्ट है। कल हम यही देख रहे थे कैसे हम डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी और फिर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, कैसे हम बहुत सारे डेटा को एक साथ यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो ये आउटपुट है अभी, वो हमारा इसका डिक्शनरी ही है, क्योंकि डिक्शनरी सिंटेक्स में एडेड है, बट हियर द वैल्यूज आर इन फॉर्मेट ऑफ लिस्ट। ठीक है। अब आपको जब डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा, व्हाट यू विल डू, pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम मतलब जो 2D टेबलो डेटा क्रिएट करता है। और डेटा फ्रेम क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि जैसे ही आप ये डेटा नाम का जो डिक्शनरी था, आप इसको पुट करोगे डेटा फ्रेम में, और अगर आप, लेट मी डू इट, आई विल राइट प्रिंट df। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा डेटा को, तो होगा क्या, जो ये कॉलम्स हैं वो हमारे क्या बन जाएंगे, लेबल्स बन जाएंगे, सॉरी, ये जो कीज हैं वो हमारे लेबल्स बन जाएंगे कॉलम के। और रोज में जो एक, अगर आप पहले से करना चाह रहे हो तो आप लेबलिंग रोज की भी कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ जो इंडेक्सिंग होगी वो क्या होगी, 0 1 2। कल हमने डिस्कस किया था कि कस्टम इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई 0 1 2 नहीं यूज करना है तो आप इंडेक्सिंग भी चेंज कर सकते हो, ABCD से भी इंडेक्सिंग कर सकते हो, 1 2 3 भी इंडेक्सिंग कर सकते हो, एप्पल बनाना और भी कोई कुछ भी लिख के आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। इट इजंट लाइक कि आप रिजिड हो 0 1 2 जो प्रीवियसली हम कर रहे थे। ठीक है। तो पांडास हमें एक और फीचर देता है, जो एक स्पेसिफिक फीचर है डेटा एनालिसिस में। ठीक है। तो जब जब मैं इस डेटा को एज ए डिक्शनरी प्रिंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम, तब होगा क्या, ये सारा का सारा जो नेम, एज, सैलरी, जो की आपको दिख रही है, ये की विल एक्ट एज एन लेबल फॉर कॉलम्स, एंड द रोज विल हैव द लेबलिंग ऑफ 0 1 and 2, या जितनी भी 0 1 2 4 जितने भी होंगे हमारे पास, डिपेंड्स। और ये जो नॉर्मल फंक्शन जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टिंग के लिए, पहला, अगर आपको शॉर्टिंग करनी है एज के थ्रू, ये तो हो गया कि आप कोई भी एक लेबल उठाइए, इनको हम क्या बोलते हैं, कीज तो हैं बट ये लेबल की तरह काम करती हैं। अगेन इसके लिए भी कल का लेक्चर आपको मोर एक्सप्लेन करेगा कि ये कीज कैसे काम करती हैं, लेबल्स की तरह। तो कोई भी की उठा के मैं इसको दूंगा, और फिर मैं बोलूंगा कि ये वैल्यूज को शॉर्ट कर दो, इनको अलग से कर दो। सैलरी के थ्रू शॉर्ट करना है तो मैं इनको ऐसे लिख दूंगा। कल मैंने शायद ये असाइनमेंट दिया था, असेंडिंग फॉल्स का मतलब क्या होता है, सिमरत बोला था क्या, या एक्सप्लेन किया था ये क्या है असेंडिंग फॉल्स। सर आपने होमवर्क दिया था। तो बोलो भाई किसने किया, असेंडिंग फॉल्स क्या होता है। लुक, आप बड़े यार आलसी इंसान हैं।
कोई बात नहीं। देखो, होता क्या है कि जब भी आपको ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि ये एक जगह आपको फॉल्स और ट्रू मिलेगा, आपको बहुत सारे पांडास एंड नंपाई में तो स्पेसिफिकली बहुत जगह आपको कुछ इक्वल्स टू फॉल्स दिखेगा, कुछ इक्वल्स टू ट्रू दिखेगा। बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है। ये इसके क्या है, बिल्ट इन फंक्शन एक लाइब्रेरी के जो हमें पांडास प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स मतलब कि आपको असेंडिंग नहीं करनी है, डिसेंडिंग करनी है। इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं थी। एक असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स मतलब जो आप डेटा आपको एज एन आउटपुट मिलेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, असेंडिंग में नहीं मिलेगा, ठीक है। इतनी सी बात थी और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ लेट मी रन इट सिंपली सो दैट यू कैन सी वट एवर आई वॉज टेलिंग यू। लुक, यहां से लेके यहां तक ये किस चीज की प्रिंटिंग हुई हमारी? ये प्रिंटिंग हुई किसकी? डीएफ, जो हमने डीएफ डॉट डेटा फ्रेम लिखा था, ठीक। और इसके बाद अब आपने यहाँ पे जो देखोगे कल नेम, ये कहाँ पे गया? एज इन लेबल कॉलम का, एज एज इन लेबल कॉलम का, सैलरी एज इन लेबल, ठीक है। बट जो रो वाइज इंडेक्सिंग है वो कैसे हुई? 0 1 2 3। अब इसको अगर आपको जब चेंज करना होता है तब आपको क्या करना होता है? आपको सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जो 1D एरे हम बनाते हैं अंदाज में, उनके थ्रू आप कर सकते हो, सीरीज के थ्रू। बट कल मैंने एज एन असाइनमेंट एक और चीज बोला था, क्या एक ही बार हम सीरीज में कर सकते हैं इंडेक्सिंग? आपने किसी ने ट्राई किया? 2-3 लोग ही तो थे लास्ट में। ट्राई किया कि अगर इंडेक्सिंग अगर मुझे डायरेक्ट करनी है रोज की तो मैं कर सकता हूँ क्या? दूसरे इस पे किया, एक ही लाइन में हुआ। हो रहा है? हाँ। शेयर स्क्रीन कर सकते हो आप, जैसे कि मैं, मुझे वो एग्जांपल ना दिखाना पड़े। अगर आपके पास वो एग्जांपल जो है शेयर स्क्रीन, इफ यू वांट टेक टाइम नो वरीज, इट्स फाइन। Okay, let me stop my sharing. Now you're not audible. ये रहा कोड, मैंने इंपोर्ट किया पांडा, हम्म, तो यहीं पे मैंने लिस्ट बनाई, कॉलम्स मैंने यहीं एक ही लाइन में और इंडेक्स भी किया, तो प्रिंट किया, ये आ गया नीचे। ठीक है। तो देखो, कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि लेट इट बी ऑन द स्क्रीन, मुझे नहीं दिखना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग, क्योंकि कल के एग्जांपल मेरे से गया पता नहीं कहाँ है। सो कल, ओए फिर गायब कर दिया, रुक जा भाई। हाँ ठीक है अभी। लुक, फर्स्ट इंडेक्सिंग जो भी हम करते हैं, एक इंडेक्सिंग होगी कॉलम के वाइज और दूसरा होगा इंडेक्सिंग रो वाइज। ना फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा था जिसमें हमने 1,2 3,4 5,6 ऐसे करके हमने डेटा बनाया। और हमेशा याद रखना कि अगर डेटा फ्रेम के अंदर आप कोई भी डेटा डाल रहे हो, दैट मस्ट बी टू डायमेंशनल। आप उसमें वन डायमेंशनल डेटा पुट नहीं करोगे, डेटा फ्रेम इज मींट फॉर टू डायमेंशनल, ठीक है। तो ये हमारे एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट दैट इज अगेन टू डायमेंशनल। तो वो हमने यहाँ पे डेटा पुट किया और उसी के अंदर हमने जो पहला हमारा बेसिक रूल होता है किसी भी चीज की कस्टम इंडेक्सिंग करने का, वो होता है कि आप कॉलम्स की करनी है तो कॉलम्स लिखिए, इक्वल्स टू में आप, जैसे कि अब मैं यहाँ ए और बी करूंगा। ए और बी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे दो कॉलम क्रिएट करने हैं, ठीक है। और दो ही कॉलम में क्रिएट कर सकता हूँ, आपको पहले साइज देखना पड़ेगा वरना आपको एरर आएगा, साइज एरर, जो आपको मैंने करके दिखाया, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा एक्स वाई जेड, जो मैं रोज में जाऊंगा। इंडेक्स आप लिखोगे तो वो रोज में जाता है, कॉलम्स के लिए आपको कॉलम की इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। तो दोनों को आप लिख के आपका जो भी डेटा है उसको इंडेक्सिंग कर सकते हो। ये तो हो गया एक बेसिक एग्जांपल, बट आप बहुत सारे डेटा के साथ भी सेम चीज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी इंडेक्सिंग मिस करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्सिंग एक्स वाई जेड को मिस करूंगा या फिर इंडेक्सिंग कॉलम्स को मिस करूंगा, तो जो बाय डिफॉल्ट होती इंडेक्सिंग होती है 0 1 2, वो इंडेक्सिंग इसमें आ जाती है आइदर इन डेटा फ्रेम और आइदर इन सीरीज,
ठीक है, ये आपको आउटपुट नीचे दिख रहा होगा AB135 B246 XYZ। तो ये कैसे आया? क्योंकि हमने इंडेक्सिंग की, रोज को हमने बोला XYZ, कॉलम्स को बोला A एंड B। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इंडेक्सिंग कैसे करते थे, एक ही लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन सिंबल। Coming back to the example, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैंने एज के थ्रू शॉर्ट किया था, एज हमारे में क्या था 24, 27, 22 एंड 29। तो एज के थ्रू शॉर्टिंग करने के बाद क्या आया हमारे पास, ये पूरा डेटा हमें कैसे मिल गया, एक असेंडिंग ऑर्डर में मिल गया। असेंडिंग है कि डिसेंडिंग? असेंडिंग ऑर्डर 22, 24, 27, 29 एज के थ्रू करने पे। आप सेम सैलरी में करने चाहोगे तो सेम सैलरी में हो जाएगा, एज की जगह आपको लेबल में क्या डालना है, सैलरी। और ये एक बहुत आसान सा फीचर है। आपको पता है जब आप गूगल शीट या फिर एक्सेल यूज कर रहे होते हो तब भी आपके पास आता है शॉर्ट फ्रॉम ए टू जेड। आप गूगल शीट, अगर आपने कभी गूगल फॉर्म वगैरह बनाए हो, जैसे कि जब मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देख रहा था, जब आपने टेक्नोलॉजी के लिए रजिस्टर किया था, तो मुझे देखना था कि एनआईटी से कितने हैं और केयू से कितने हैं, तो मैं शॉर्ट ए टू जेड करूंगा तो अपने आप शॉर्टिंग कर देता है वो। तो वो कैसे काम करता है वहां पे तो फीचर है, बट आपको अगर वो सेम काम पांडास में करना है तो आपको वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, शॉर्ट वैल्यूज, शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द सॉर्टिंग द डेटा। नाउ द सेकंड थिंग इज लाइक कि अगर मुझे असेंडिंग नहीं करना है, डिसेंडिंग करना है, तो शॉर्ट वैल्यूज तो मैं लिखूंगा, बट आई विल आल्सो मेंशन असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू वाला कंसेप्ट बनता ही नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही असेंडिंग में जाता है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक एग्जांपल शॉर्टिंग करने का। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर हमें, ये तो हो गया शॉर्टिंग बाय रोज, या फिर शॉर्टिंग रोज बाय वैल्यूज के, रोज की जो वैल्यू थी उनके थ्रू हमने शॉर्ट कर लिया। अब सॉर्टिंग बाय इंडाइसेस, सेम डेटा जो है, अगर मुझे इनके इंडाइसेस के थ्रू इसको शॉर्ट करना है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल राइट शॉर्ट इंडेक्स। अब जो सॉर्टिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, वो इंडेक्स के थ्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हो कि अब जो लास्ट फाइनल आएगा आउटपुट, वो आएगा 0 1 2 3। यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट ही वही डेटा था, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। बट कई बार जब हमारे पास डेटा में शॉर्टिंग करने के लिए इंडेक्सिंग उनकी कई बार 3 4 5 6 7 हो जाती है, तो उसको भी आप असेंडिंग के थ्रू कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हो। अगर आपको सेम चीज डिसेंडिंग में चाहिए तो आप वहां पे लिख दीजिए डिसेंडिंग असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये आपके किस में आ जाएगी, डिसेंडिंग में आ जाएगी। खुद से ट्राई करना आप। तो ये एक और सॉर्टिंग मेथड हो गया विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस किसके, 0 1 2 3, यानी कि इंडेक्सिंग ऑफ रोज। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये तो हो गया कि हम एक एक कॉलम के थ्रू कर रहे थे, जो हम यहाँ पे कर रहे थे एज में और सैलरी में। लेकिन ये फीचर अब हमें एक्सेल और उसमें नहीं मिलता, शीट्स में। वो शॉर्टिंग थ्रू मल्टीपल कॉलम्स, वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा, बट विद द हेल्प ऑफ पांडास हम मल्टीपल शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। लुक, अब मैंने पहले असेंडिंग एक को ट्रू लिखा, एक को फॉल्स लिखा, ये अपने आप ही सेट कर लेगा। पहला आपने कौन सा दिया, पहला एज है तो एज ट्रू है, सैलरी क्या है फॉल्स। तो यानी कि एज चाहिए मुझे असेंडिंग ऑर्डर में और सैलरी चाहिए मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो दोनों को मैं एक साथ लिख के कर सकता हूँ। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। लुक, तो एज कैसे आई हमारी, असेंडिंग ऑर्डर में। सैलरी कैसे आई हमारी, अरे 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 कुछ तो गड़बड़ हो गया। 1 सेकेंड, क्योंकि ये तो आ नहीं था, सॉरी, अभी तो रन ही नहीं होगा।
अच्छा ठीक है, तो सॉरी 45,000 वो उसकी थी, सॉरी आई एम माई मिस्टेक। तो एलिस जो था, एलिस की एज कितनी थी? 24। सैलरी कितनी थी? 50,000। तो पहले हमने किस में, असेंडिंग में हमने क्या लिखा? ट्रू। और वो किसके थ्रू जाएगी? एज के थ्रू। ठीक है। तो पहले एज में, अगर मैं एज की शॉर्टिंग करूंगा असेंडिंग के थ्रू, तो पहले हमारे पास कौन आएगा? चार्ली। चार्ली की सैलरी किधर है? ये रही। अब जो चार्ली की सैलरी आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट शॉर्टिंग जो होगी वो होगी एज के थ्रू वापस से, वो होगी 22 के बाद आएगा 24। 24 मतलब एलिस। एलिस की सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। तो अगेन ये भी शॉर्टेड मल्टीप्लिकेशन है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाएगी, बट अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी तो एक दूसरे की सैलरी चेंज हो जाएंगी। एलिस को किसी और की मिल जाएगी, चार्ली को बॉब की मिल जाएगी, और डेविड की उसको मिल जाएगी, फिर तो कंपनी बिक जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो पहला वाला जो कंडीशन है वो जो ट्रू होगी उसी के थ्रू हम करेंगे। ठीक है। नाउ लेट मी कम बैक टू दिस एग्जांपल। तो ये होगी हमारी शॉर्टिंग थ्रू मल्टीपल कॉलम्स। यस आयशा, मुझे शायद पता है कि आप क्या डाउट पूछने वाले हो। हाँ सर फिर इसमें हम सिर्फ एज के थ्रू ही सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, हाँ, एसेंशियली। क्योंकि आप एक बार कर ही लेते हैं यहीं पे। इसको भी अगर मैं ट्रू लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। क्योंकि ये तो अगर मैं सीधा एज के थ्रू ही करता तब भी यही सेम आउटपुट आ रहा था, मल्टीपल क्या ही हुआ। वही सेम है। जो चाहे हम कुछ भी कर लें, वो जो इनिशियल हमारा जो कंडीशन है वही आएगा, बाकी आ ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ फॉल्स करूँगा तो ये पूरा वापस से चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो बात भी देखनी पड़ेगी ना कि एक दूसरे की सैलरी स्विच ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एज को फॉल्स लिखा, तो ये पहले वाले को ही कंसिडर कर रहा है, बाकी और किसी को कंसिडर नहीं कर रहा है। मे बी इसका यूज हम तब कर सकते हैं जब दोनों के दोनों कॉलम्स की जो वैल्यूज है वो आपस में डिपेंडेबल ना हो। फॉर एग्जांपल दो डेबिट की एज और सैलरी ना हो, वो कुछ दो अलग डेटा सेट्स हो, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर सिमिलर डेटा सेट है तो यूज करने का फायदा ही नहीं है इस मल्टीपल कॉलम का। मे बी मैं देखता हूँ कुछ और एग्जांपल होता है, क्योंकि पहला जो होगा उसी के थ्रू हो जाएगा। जैसे कि फॉल्स लिखा मैंने एज को, तो अभी उसके थ्रू शॉर्टिंग होगी। सैलरी का तो कुछ कंसेप्ट ही नहीं आया। एंड दैट इज लाइक कॉमन सेंस ही बात आ रही है कि यहाँ पे कि इसकी सैलरी स्विच हो जाएगी, वरना आप यही बोल रहे थे आयशा कि सिंगल एक ही चीज़ है। ठीक है। तो मे बी जब हमारे पास दो डिफरेंट डेटा होंगे तब हम इसका यूज कर सकते हैं, फिलहाल तो इसको एक ही चीज़ है। बाकी सारे लोग भी पूछ ले अगर वैसे, और मैं तो मुझे क्या, मैं तो आगे बढ़ ही जाना है। लुक, अब एक और टॉपिक आते हैं कि आपको ग्रुपिंग कैसे करनी है। कि दो चीज़ें होती हैं हमारे पास मेजर जो हम करते हैं, एक तो शॉर्टिंग होती है, ग्रुपिंग होती है, जो जनरली हमें डेटा सेट्स के साथ करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो है कि मैं ग्रुप बाय एज कर रहा हूँ, और सैलरी का मुझे क्या चाहिए? मीन चाहिए। यानी कि जब, ऐसा नहीं है, मैं कल भी बता रहा कि पांडास बहुत अच्छी लाइब्रेरी इसलिए भी है क्योंकि खुद के साथ तो मतलब खुद के दो फंक्शन तो आप यूज कर ही सकते हो, बट नंपाई के भी फंक्शंस इसमें आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। यानी कि जो पांडा है वो नंपाई के साथ भी कंपेटेबल है। नंपाई में आपने जो फंक्शंस यूज किए थे वो इंपोर्ट नंपाई करके, अब जैसे कल हमने एग्जांपल देखे वो भी कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले तो मैंने ग्रुप किया, फिर उसके बाद मैंने एक और फंक्शन ऐड कर दिया डॉट मीन करके। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? सैलरी का मीन मिल जाएगा। और ग्रुपिंग किसके थ्रू होगी? एज के थ्रू। ये जो एग्जांपल होगा वो होगा ग्रुप बाय एज एंड कैलकुलेट द मीन ऑफ सैलरी। जरा प्रिंट करते हैं। लुक, यानी कि ग्रुपिंग किसके थ्रू हो रही है? एज के थ्रू। यानी कि पहला जो भी डेटा होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एज पे। और मीन हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? सैलरी का। ठीक है। इसमें आप देखो दो चार फंक्शन और लगा के शायद मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि मीन के अलावा जो हम नंपाई में यूज करते हैं, दो डेटा सेट लेना,
स्क्वायर रूट लगाने का या कुछ और लगाने का, वो ट्राई करना, तो ज़्यादा अच्छी वैल्यूज दिखेंगी। ठीक है ना। अब थोड़े और स्टैटिक्स देख लेते हैं, स्क्वायर रूट के बजाय मिनिमम मैक्सिमम भी। लुक, ये मैं एक ही डेटा सेट यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसके नीचे 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 ऐड करते जा रहा हूँ। अब ग्रुपिंग बाय एज, सैलरी के बाद अब मुझे जो इसमें, अब इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं एग्रीगेशंस। यानी कि जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल मीन निकाल रहे हो या मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो, इनको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन। तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल मल्टीपल एग्रीगेशंस का। पीछे वाला जो हम नॉर्मल मीन निकाल रहे थे वो है सिंगल एग्रीगेशन। जब आप बहुत ज़्यादा एग्रीगेशंस आपको चाहिए तो आप डॉट AGG करके सारों को बॉक्स में लिख सकते हो। और यही पांडा का एक और फीचर है कि आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि मीन किसके ऊपर जाना है, मिनिमम किसके ऊपर जाना है और मैक्सिमम किसके ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो इनपुट एज एन स्ट्रिंग वैल्यू है, कोई फंक्शन नहीं लिख रहे हम यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। इसमें डिफरेंस ही कहाँ से दिखेगा, क्योंकि पहले ही हमने एज के थ्रू कर लिया। आप एक काम करिएगा, शायद मैंने जो क्विकर वाला जो डेटा सेट दिया है उनमें ये वाले फंक्शंस यूज करिएगा, क्योंकि उसमें वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, उसके ब्लॉक्स भी डिफरेंट डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ तो आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ ही पता पड़ेगी, क्योंकि सारा एज पे ही डिपेंडेंट, हम पहले एज डिफाइन कर रहे हैं। मेरा जो ये डेटा सेट है वो मुझे बदलना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए आप ऐसे समझिए कि विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन आप मल्टीपल एग्रीगेशन कर सकते हो इन द ऑर्डर जो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है मर्जिंग और जॉइनिंग। कि अगर आपको जो आपका डेटा सेट है उसमें कुछ मर्ज करना है या ज्वाइन करना है तो वो आप कैसे करोगे ना। अगेन सेम डेटा सेट ही हम ले रहे हैं, तो वापस से यहाँ से देखो, यहाँ से जो हमारा ये वाला डेटा था इसमें हम दो डेटा हम मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा 1, इसकी आईडी है 123, नेम एलिस बॉब चार्ली। डेटा 2, आईडी 124, स्कोर 85 90 88। और इन दोनों का हमने एक df1 और df2 डेटा फ्रेम बना लिया। और आईडी में मर्ज करने के लिए, मतलब आईडी तो हमारे पास अभी यहाँ है ही नहीं ना, मेन जो हमारे पास क्या नेम एज सैलरी है। आईडी हम अगर इसमें मर्ज करने चाहेंगे तो पहले df1 df2, और ऐसा नहीं कि आप दो ही लिखोगे, आप 3 4 5 जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो डेटा फ्रेम्स के नाम। और ऑन, आईडी, हाउ, इनर। इनर और आउटर दो आपके पास होते हैं, और किसके ऊपर लगाना है वो आपको यहाँ मर्ज करना पड़ता है। यानी कि आईडी के ऊपर इनर फंक्शन में कैसे दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा आपको। फॉर एग्जांपल दो तरह की मर्जिंग हम करते हैं, आउटर मर्जिंग और इनर मर्जिंग। लुक, बाकी सबको थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में कॉपी पेस्ट करके पूरा आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इसको भी हटा देते हैं। अब देखते हैं, पहला जो मर्ज हम कर रहे हैं वो हम किस में कर रहे हैं, आईडी में कर रहे हैं, और df1 और df2 के थ्रू ही कर रहे हैं, बट इनर मर्जिंग होगी। और इनर मर्जिंग करने की वजह से यहाँ पे जो डेटा जाएगा एलिस बॉब चार्ली और डेविड का, हमने कितनी वैल्यूज इसमें पुट की थी, 1 2 3। ठीक है, लेकिन एज एन आउटपुट हमें मिल रहा है एलिस और बॉब। क्यों, कल जो लेक्चर में थे वो एक बार देखिए वापस से, कि अगर मुझे नॉर्मल यहाँ पे 1 2 पे रुक क्यों गया, 3 और 4 किधर गए, वो क्यों नहीं आ रहे, कि एलिस और बॉब ही क्यों है, चार्ली किधर गया, या है हमारे पास चार्ली।
दो डेटा फ्रेम्स जो आपने देख रहे हो, फिलहाल के लिए डेटा टू को भूल जाओ। अगर जो डेटा वन है वो डेटा वन मैं डेटा के साथ मर्ज करने चाहूंगा, तब इसके पास एक एक्स्ट्रा है डेटा के पास, डेबिट। डेटा वन के पास डेबिट नहीं है। डेटा टू के पास 1 to 4 है। ध्यान से देखो, डेटा टू के पास 1 to 4 है, लेकिन डेटा वन के पास 4 नहीं है। आप कुछ समझ आ रहा है? या क्या करते हो यार, सामने लिखा है, बोलो कोई। अच्छा हाँ सिमरत, बताओ क्या समाचार है? कॉमन आईडी इसने बस यूज किया इसीलिए। परफेक्ट। कि भाई कॉमन जो चीज़ मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि हमेशा जो भी डेटा फ्रेम्स काम करेंगे ना कॉमन पे करेंगे, कि वहां पे एलिस बॉब चार्ली डेविड है, पर नीचे जो डेटा वन है उसमें डेविड नहीं है, तो डेविड गायब हो गया ऐसे ही। ठीक है। अब डेटा टू में 1 2 तो है बट 3 नहीं है। ठीक है, तो 4 और 3 ऐसे अलग अलग हो गए, वो दोनों अलग अलग चीज हो गई। तो कॉमन क्या निकल के आया? कॉमन निकल के आया एलिस बॉब 1 2। तो क्या प्रिंट होके आएगा? 1 2 एलिस बॉब। क्यों? क्योंकि हम क्या यूज कर रहे थे? इनर मर्जिंग। किस पे? आईडी पे। लेकिन जब सेम चीज हम करने जाएंगे आउटर मर्जिंग के थ्रू, किसमें? सेम जो हमारा डेटा सेट था, अब यहाँ पे भी तो सेम ही चीज है ना, df1 वही है, df2 भी वही है, डेटा भी हमारा वही है, लेकिन यहाँ पे जब मर्जिंग होके आएगी वो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एलिस भी है, बॉब भी है, चार्ली भी है, लेकिन ये आ गई NaN। कल जो मैं आपको नॉन नल वैल्यूज बता रहा था, NaN वैल्यूज फाइंड करने के कोड बता रहा था, ये फंक्शन आपको नॉन नल कैसे निकालना है, नॉन नल काउंट करना है, तो नॉन नल काउंट करने का ये रीजन होता है कि कई बार आप जब डेटा मर्ज कर रहे हो तो, या फिर जब आप डेटा को फ्रेम कर रहे हो तो, तब आप ऐसे आपके पास रीजंस आ जाते हैं कि आपने मान लो कि कोई मैं फीडबैक दे रहा हूँ, मैंने अपना नंबर तो शेयर किया बट मैंने अपना ईमेल शेयर नहीं किया, तो मेरा ईमेल वाले में क्या आ जाएगा? NaN। नंबर मैंने किया, ईमेल किया, नंबर नहीं किया, तो नंबर पे क्या आ जाएगा? NaN। तो वो NaN कितने हैं वो काउंट करने के लिए कल हम फंक्शंस देख रहे थे, और NaN आते कैसे वो एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, जिस बंदे ने नंबर नहीं दिया है तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, या फिर जिस बंदे ने ईमेल नहीं दिया वो मेरे किसी काम का नहीं है, फिर मैं जब दो डेटा इसको मर्ज कर रहा हूँ, मैं कौन सी मर्जिंग यूज करूंगा? मैं मर्जिंग यूज करूंगा इनर मर्जिंग। लेकिन मैं बोलूंगा कि कोई बात नहीं, नंबर है ईमेल नहीं है कोई बात नहीं, ईमेल है नंबर नहीं है कोई बात नहीं, फिर मैं कौन सी मर्जिंग यूज करूंगा? मैं आउटर मर्जिंग यूज करूंगा। डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो, कॉमन है वही प्रिंट होगा, उसके अलावा बाकी सारा खत्म। इसमें ये बोलेगा कोई बात नहीं, आधा है मैं NaN लिख दूंगा वहां, बट बाकी चीजें हैं तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आ गया समझ? आया? ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा इनर मर्जिंग और आउटर मर्जिंग। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये दो दो लाइन का डेटा है, इसलिए आपको लग रहा है एक बार इनर मर्जिंग और आउटर मर्जिंग आप उस पर करना, जो मैंने 10,000 वाला जोमेटो CSV भेजे, फिर काउंट निकालना कि नॉर्मल वैल्यूज कितनी थी। अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गया मर्जिंग का। अब हमें ज्वाइनिंग कैसे करना है? मर्जिंग मतलब कि दो डेटा सेट्स थे, दो डेटा फ्रेम्स थे आपके पास, दोनों को मर्ज किया। अब ज्वाइनिंग की नहीं, मुझे इंडाइसेस के थ्रू क्या करना है, मुझे उनको ज्वाइन करना है डेटा को। फॉर एग्जाम्पल पहले इसको Ctrl+C कर लेते हैं। देखो, अब मैंने डेटा लेफ्ट करके एक सेट बनाया, डिक्शनरी अगेन, इसमें मैंने लिस्ट भी रखी है, तो ये भी डेटा फ्रेम ही हुआ। ये भी मैंने एक डेटा राइट करके बनाया और इसमें ABC लिखा। अब लेफ्ट के लिए मैंने इसमें लिखा डेटा लेफ्ट, और इंडेक्सिंग मैंने उसको क्या दी? ABC। ये रो की इंडेक्सिंग है या कॉलम की? बोलो। रो। रो की। क्यों? क्योंकि कॉलम के लिए कॉलम मेंशन करना पड़ता है, इंडेक्स का मतलब रो। ठीक है। राइट में मैंने वापस से डेटा राइट लिखा और इसको इंडेक्सिंग दी BCD। और दोनों डेटा फ्रेम्स क्रिएट करने के बाद मैंने बोला कि df.left.join, यानी कि लेफ्ट में राइट को ज्वाइन करना है, और कैसे ज्वाइन करना है? इनर, यानी कि जो कॉमन है बस वही, बाकी हटा दो। ठीक है। हाउ इनर और हाउ आउटर ऐसे काम आता है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको। पहले ये बाकी सारी चीजें हटा लेते हैं, या फिर देख ही सकते हो यहाँ पे, हटा ही देता हूँ।
ठीक है। अब इंडेक्सिंग क्या हो गई, एबीसी पे चली गई। क्यों? क्योंकि जो डेटा मैंने क्रिएट किया था अब वो मतलब एक अलग से मैंने डेटा लिया और उन दोनों को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अभी इसका कोई खास काम नहीं है क्योंकि ये दूसरा डेटा सेट है और ये मैंने इसके यहाँ पे डेटा लेफ्ट और डेटा राइट करके अलग से दो डेटा सेट बना लिया, दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्वाइनिंग बट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, इनर लिखा इसलिए कॉमन आया, आउटर लिखूंगा तो एन वैल्यूज के साथ सारा वैल्यूज आ जाएगा हमारे पास। नाउ फ्यू मोर एग्जांपल्स, फिर आज की कहानी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं। मैंने कल लिख दिया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने, इंपोर्ट का मैंने लिखा था कि सीएसवी फाइल अगर इंपोर्ट करनी है तो क्या करना है। एक्सपोर्ट का कुछ नहीं बताया था, तो पहले देख लेते हैं कि अगर हमें कोई डेटा है तो वो एक्सपोर्ट कैसे करना है। एंड इसमें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं डेटा, मेजरली जो हम कर रहे होते हैं वो या तो सीएसवी फाइल में कर रहे होते हैं या एक्सेल फाइल में कर रहे हैं या जेसन फाइल में भी कर सकते हो। अप टू यू कि आप कैसे डेटा को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। जो आपने क्रिएट किया है, क्रिएट कैसे किया हो, दो आप इंपोर्ट करते हो, फाइनल को एक्सपोर्ट करने चाहोगे। जब इंपोर्ट का मैंने बताया था कि कोई फाइल इंपोर्ट करनी कैसे करते हैं, बट एक्सपोर्ट और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे लिखूंगा df डॉट, अब df मतलब क्या, जो ये हमारा df चला आ रहा है ना, df प्रिंट df जो हम कर रहे हैं, ये जो डेटा होगा ये वाला, ये हम एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपको एट द एंड नाम लिखना होगा उस ऑब्जेक्ट का जो आपने क्रिएट किया और जिसको आप फाइनली एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हो। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ जो नॉर्मल हमारा डेटा फ्रेम था फर्स्ट वाला, ये वाले डेटा सेट को, इसको एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ। नाम क्या होगा, आउटपुट डॉट CSV होगा, इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। अब ये वापस से आ गया फॉल्स। ये लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑन इंडेक्सिंग, जिससे कि आपको फॉल्स ट्रू इसका भी क्लियर हो जाए। मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, ब्लैंक वाली, इसमें अभी कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ ओके, तो फॉर एग्जांपल जो हमारा पुराना डेटा सेट था वही, बट उसमें ना मैं दो तरह से डेटा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। एक डेटा में एक्सपोर्ट करूंगा नॉर्मली बिना किसी चीज लिखे, df डॉट टू CSV, क्योंकि मुझे CSV फॉर्मेट में चाहिए, और इसको मैं यहाँ पे बिना इंडेक्सिंग के इंपोर्ट करूंगा। यानी कि जो आपके पास CSV फाइल क्रिएट होके आएगी उसमें कॉलम्स की लेबलिंग होगी, बट इंडेक्सिंग जो होती है ना रो वाइज, वो नहीं होगा। लेकिन इसमें जो लेबलिंग होगी वो दोनों लेबल होगी, यानी कि एक आपको रो वाला रो दिखे, एक कॉलम दिखेगा जिसमें रो की इंडेक्सिंग होगी और एक रो दिखेगी जिसमें कॉलम की इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, तो इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स जो हम यूज करते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, डेटा आपका तब भी एक्सपोर्ट होगा, बट इंडेक्सिंग जो रो वाइज होती है वो आएगी। लेकिन अगर आप इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स लिखते हो तो इंडेक्सिंग जो रो वाइज आपकी होती है वो प्रिंट होके नहीं आएगी, यानी कि CSV फाइल में हमारी इंक्लूड नहीं होगी। इस पे तो शायद ना हो। ठीक है, परमिशन ऑनलाइन कंपाइलर इसलिए ये नहीं चलेगा। आप इसको सेम को आप चाहोगे तो उस पर अपने कंपाइलर पर चलाना है, चल जाएगा। ठीक, नाउ कम बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन। तो ये तो हो गया हमारा किसका बात, हमारी किसकी बात, सॉरी, इंडेक्सिंग इक्वल्स टू फॉल्स लिखने का मतलब क्या है।
बट अगर आपको एक नॉर्मली कोई भी फाइल है जिसको क्रिएट करना है CSV फॉर्मेट में, तो आप ये फंक्शन के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। नाउ एक्सपोर्ट टू एक्सेल, कुछ नहीं करना है, बस एक्सेल का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो लिख देना है, और टू CSV जहाँ लिखिए वहाँ टू एक्सेल लिख देना है। तो ये हो गया टू CSV टू एक्सेल। अब एक और रह गया जेसन, सेम चीज, आपको जेसन का फाइल फॉर्मेट लिख देना है डॉट जेसन, और वो दोनों सेम होते हैं तो टू जेसन लिख देना है। तो ऐसे जो आपका डेटा क्रिएट होगा वो किस में आ जाएगा, जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी। जेसन क्या होता है खुद एक्सप्लोर करना अगर आपको नहीं पता है तो। एक अगेन फाइल फॉर्मेट होता है जो हम यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि एक्सपोर्ट डेटा हम कैसे करते हैं। इंपोर्ट में भी जैसे जैसे CSV का लिखा था जो मैंने आपको भेजा था, उसमें CSV की जगह XLX लिखोगे तो उसका हो गया, जेसन का लिखोगे तो जेसन का हो गया। ठीक है, बट जैसे ही उसको इंपोर्ट करने का जो ऑपरेशंस आप करोगे उसके बाद फिर आप एक्सपोर्ट डेटा करना होगा तो उसको आप ऐसे कर सकते हो। नाउ अब जो 2-3 टॉपिक्स हम देख लेते हैं जो बेसिक कंसेप्ट्स में नहीं आते, जो थोड़ा एडवांस कंसेप्ट होते हैं बट रिक्वायर्ड होते हैं पांडास में। जिसमें पहला आता है वो होता है पाइवट टेबल, PIVOT। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका गड़बड़ है, बट पाइवट टेबल्स, PIVOT टेबल्स। ठीक है, अब ये पाइवट टेबल्स क्या करता है कि आपके पास जो भी डेटा आया, जो भी फाइनल कुछ भी आपने कितना भी डेटा डाला डजेंट मैटर, उसको क्या करेगा, डेटा को समराइज करेगा एंड रीशेप करेगा। कैसे, सेम जो हमारा एग्जांपल चल रहा है इसी को लेके चलते हैं, और क्या करते हैं इसमें पाइवट लिखते हैं कि पाइवट टेबल क्या करती है। तो पाइवट टेबल के जो वैसे इसमें सेल्स तो नहीं है बट फिर भी रुको, मैं डेटा सेट अपना थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक और डेटा सेट में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, नाम बदल देते हैं इसका, हम लिख देते हैं ए, बढ़ा दिया इसमें, इसको लिख देता हूँ मैं DF A डेटा A DF A, और कहीं कुछ तो नहीं चेंज करना, नहीं। ठीक है, तो ये हमारा वापस डेटा, इसमें सेल्स का एक और कंसेप्ट है। तो इसको देखते हैं। अब ये वाला जो हमारा डेटा था, अगर हम नॉर्मल डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं उसके बाद इंडेक्सिंग जो होती है और एक पाइवट फंक्शन के साथ करते हैं तो क्या होता है। अगेन ऑनलाइन कंपाइलर नहीं काम करेगा ये पाइवट फंक्शन इस पे, वो इसका था, इसके पहले मुझे हटा देने दो 1 सेकेंड, अब कर जाना चाहिए। दूसरा लिंक हमारे पास कौन सा अवेलेबल रहता है ना, ये भी हटा तो उसको देते हम हैं। यूज कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूस रहता है ना, बीच में बात नहीं होता। ठीक है, अब सादा सिंपल हमारे पास एक एग्जांपल आ गया कि जो अब मेरे पास फरवरी की जनवरी की दोनों की मेरे पास क्या आ गई, सेल्स आ गई। और जो मैंने इसमें क्या फंक्शन यूज किया था, कॉलम्स में तो मंथ लिखा ही था कि पहले मुझे कॉलम्स में क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्सिंग में क्या चाहिए, मंथ चाहिए, और रो इंडेक्सिंग में क्या चाहिए, नेम चाहिए, जिसकी भी एलिस बॉब चार्ली तीनों के नेम चाहिए, और कॉलम में क्या चाहिए मुझे, मंथ की इंडेक्सिंग चाहिए। ठीक है, वैल्यूज किसकी इनपुट कर रहा हूँ मैं, सेल्स की इनपुट कर रहा हूँ, और जो फंक्शन यूज कर रहा हूँ वो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सम। ठीक है, क्या यूज करूँ मैं, सम, यानी कि अब इसका कैसे सम निकालना है इसने। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक एग्जाम्पल इसमें पकड़ लेते हैं, एलिस। एलिस की जनवरी में सेल्स कितनी थी, 200। बॉब की जनवरी में सेल्स कितनी थी, 150।
तो ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होते हैं उनको ज़्यादा समझ आते हैं, उनके ज़्यादा काम के। मैं तो कभी जनरली यूज़ करता नहीं हूँ, बट आप ऐसे इनको देखना पड़ता है कि एलिस जैन अगर आपको वेरीफाई करना है, वरना अगर इसको भरोसा है इस पे तो सीधी सी वैल्यू है कि यहाँ पे आ गई। बट यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि एक जगह पे 0 लिखा है, वो हमारे काम का है। वो बस थोड़ा सा समझ लो कि जहाँ पे भी मुझे NaN आता है, अगर मेरे पास कॉमन नहीं है, जो मैं आपको बता रहा था, दो तरह की जब हम मर्जिंग करते हैं, तो अगर मुझे चाहिए कि उस NaN वैल्यू को मैं कुछ स्पेसिफिकली फिल कराना चाह रहा हूँ, देन मैं वहाँ पे फिल वैल्यू इक्वल्स टू में वो डेटा को पुट कर दूंगा। तो जो फिल वैल्यू NaN के बजाय वहाँ पे क्या आ रही है, 0। बस ये एक यहाँ पे है। बाकी समरी जो आपको निकालनी होगी वो आप इसके थ्रू निकाल सकते हो कि वैल्यूज बता दो, कौन से वैल्यू की समरी चाहिए, इंडेक्सिंग बता दो रो की, कॉलम की, और जो फंक्शन यूज करना है वो बता दो। ये AGG फंक्शन मतलब क्या, एग्रीगेशन फंक्शन। ठीक है, तो एग्रीगेशन फंक्शन मैंने सम बता दिया। मीन बताना होगा तो मैं मीन बता लूंगा यहाँ पे सेम। ठीक है, तो इसका इसने क्या मीन निकाल के दे दिया। और अगेन मैं बोल रहा हूँ डेटा ये वाला वो है ही नहीं जिस पर वो सेल्स आप लगा सको, इसलिए आप इसको जो क्विकर वाला डेटा है उस पर एक बार चेक करना। बट ऐसे आप एग्रीगेशन फंक्शन चेंज कर सकते हो और पाइवट टेबल के थ्रू समरी क्रिएट कर सकते हो। और अगर कहीं पे चाहिए कि आपको NaN वैल्यू नहीं चाहिए तो फिल वैल्यू में आप 0 रख सकते हो। जो आप रैंडम वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। फिल वैल्यू 2 लिखूंगा तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कहीं पे भी जहाँ पे भी NaN आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पाइवट टेबल का कंसेप्ट। और ऐसे ही एक सेम होता है कि अगर मुझे डुप्लीकेट हैंडल करना है तो उसके लिए क्या करूँ, इसको वापस ले आते हैं, शायद ये था हमारा। एक और आता है। अब मैं वापस से एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए ऊपर का कुछ मत देखो, यहाँ से देखो कि pd.dataFrame df को वापस से डिफाइन कर रहा हूँ। और ऊपर समझो df है नहीं, तो नेम में मैं क्या डाल रहा हूँ यहाँ पे, एलिस बॉब, और वापस से मैं क्या पुट कर रहा हूँ, एलिस। एज में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 25 30 25। जब मैं इसको रन करने जाऊंगा तो जो डुप्लीकेट्स होंगे वो हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे, इसे एग्जाम्पल ये पूरा हटा देते हैं अभी और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो बस जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो हट गई और नॉर्मल हमें जो डेटा फ्रेम बन के आता है वो आ जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप डुप्लीकेट्स। एक और ये टॉपिक हो गया। फिर आ जाते हैं एक और चीज़, उसके बाद हम खत्म करते हैं कस्टम फंक्शंस। कि आपने कस्टम इंडेक्सिंग तो देख ली, बट आप कस्टम फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं ये सम मीन वगैरह बता रहा था, अगर फंक्शन जो पाइथन में पढ़ रहे थे ना कि फंक्शन जैसे क्रिएट करते हैं, वो सेम काम आप पांडास में क्रिएट कर सकते हो। वो कस्टम फंक्शंस अगर आपको बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हो, जैसे कि सैलरी के लिए, किसी और के लिए। और कस्टम फंक्शन अगर वापस से आपको कंपेयर करने जाना है तो एक्सेल से कर सकते हो, जैसे हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं। नाउ let me give you the example of that. इसको वापस ला लेते हैं। सबसे पहले कि डिफाइन कैसे करते हैं वो तो पता ही है, नॉर्मली उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि ऐड बोनस नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया और किस पे करना है बस वो देखना होता है कि जो आपकी लेबलिंग आपने कर रखी होती है, यानी कि जो सैलरी नाम का ये डेटा सेट है, अभी ये वाला डेटा सेट काम का नहीं है, इसको आप हटा लेना। हाँ गया, ये वाला जो है ये किसी काम का नहीं है और ये भी किसी काम का नहीं है। अभी जो ये डीएफ है वो क्या है, ये है, क्योंकि मैंने वैसे तो मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे डेटा लिख दिया है, इसको भी चेंज कर लेते हैं, DFB ठीक है। तो ये भी डेटा फ्रेम अलग हो गया। अब ये जो DEF काम कर रहा है वो किस पे काम कर रहा है, ये कर रहा है सैलरी पे, और सैलरी किसके, DF पे। अब ऑब्वियसली बात है, आपको पहले डेटा फंक्शन बताना पड़ेगा कि कौन से डेटा फंक्शन में सैलरी को ढूंढना है। तो ये सैलरी को ढूंढेगा कौन से डेटा फंक्शन में, जो DF नाम का डेटा फंक्शन है। DF नाम के जो डेटा फंक्शन है उसका मेन डेटा कहाँ पे, ये वाली वैल्यू डेटा पे क्या है, ये। तो सैलरी क्या हुई, ये। अब इस पे हमें क्या करना है कि रिटर्न करना है सैलरी, मतलब
जो कल मैं बता रहा था क्रिसमस आ गई तो गूगल को अपने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या करना है 1.10 से हाइक करनी है और उसके बाद जो डेटा आएगा वो अकाउंट्स को भेज देना। तो डेटा साइंटिस्ट को वापस से बोला जाएगा कि मुझे एक वापस से शीट दे दो सारे के सारे की सैलरी 1.10 से हाइक करने के बाद। ठीक है, तो अब ये जो डेटा आएगा बोनस नाम के कॉलम में सैलरी की जो वैल्यूज पुट थी, यानी कि जो ये 50,000 60,000 45,000 आधी हिंदी आधी इंग्लिश, उसमें क्या होगा ऐड बोनस हो जाएगा। ऐड बोनस को जब मैं कॉल करूंगा यहाँ पे तो ऐड बोनस में क्या जाएगी वैल्यू, रिटर्न वैल्यू सैलरी मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, पता नहीं इसमें क्या अब आएगा पर रन करके फिर भी देख लेते हैं। सर एक्सपोर्ट वगैरह पहले हटाइए। हाँ वही यार, भूल जाता हूँ मैं। लेट्स रिमूव इट। अरे वाह, हाइक हो गई सबकी सैलरी 0.1% है। 5,000 इसकी बढ़ गई, 6,000 इसकी बढ़ गई और इसकी तो कुछ कम बढ़ी है, 4,500 बढ़ गई, इसकी 7,000 बढ़ गई। तो क्या हुआ कि बोनस नाम का एक और हमारे पास कॉलम क्रिएट हो गया और बोनस नाम के कॉलम में मुझे ये पता पड़ गया कि इस महीने मुझे कितनी सैलरी देनी है या फिर आपसे कितनी सैलरी देनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कस्टम फंक्शंस। अब ऐसे बोनस मैंने यहाँ लिखा है, बाकी आप कुछ भी लिखने जा सकते हो जो आपकी मर्जी है। तो कस्टम फंक्शंस भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैंने रिटर्न यूज किया है, रिटर्न के बजाय आप इसमें डेटा फ्रेम्स भी प्रिंट करा सकते हो, जो भी आपको प्रिंट कराना है वो करा सकते हो। नॉर्मल फंक्शन में जो भी हम कर सकते हैं जैसे करते थे वो हम यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या कि अगर आपको कस्टम फंक्शन क्रिएट करना है इन पांडास तो आप कैसे कर सकते हो। वैसे पांडास क्या मतलब, अगेन जो मैं बोल रहा हूँ कि पांडास क्या करता है, सबको एक साथ कंपाइल कर देता है। तो एक फंक्शन को कैसे हमने यूज कर सकते हैं पांडास में वो है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी कस्टम फंक्शन के साथ, वो है ये वर्ड डॉट अप्लाई। बिना डॉट अप्लाई के आप कोई भी कस्टम फंक्शन को ऐड नहीं कर सकते, बस ये एक एडिशन है, बाकी और कुछ नहीं है। नॉर्मल जो फंक्शन हमने पढ़े थे वही है कि डीएफ बोनस में जो डीएफ डॉट अब जहाँ पे लिखोगे ना, जैसे हम कहाँ गया ये, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो ना डीएफ डॉट शॉर्ट वैल्यूज और फिर जिसकी शॉर्ट वैल्यू करनी है वो, यहाँ पे ऐसे सेम लिखना है डीएफ डॉट से पहले किसमें आपको फंक्शन अप्लाई करना है और अप्लाई वर्ड लिख देना है। डॉट करने के बाद एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो डीएफ बोनस होगा। अब यहाँ देख रहे हो कि अगेन ये है स्ट्रिंग ही या है एक लिस्ट ही, बट अब ये काम कैसे कर रही है, एक इंडेक्सिंग के थ्रू, यानी कि एक अलग से आप कॉलम क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो जो आपने कंसेप्ट पढ़े थे कि स्ट्रिंग को वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि ये तो एक स्ट्रिंग ही है ना, है कि नहीं, बट ये तो एक पूरा फंक्शन की तरह काम कर रहा है। सम लिखूंगा तो सम आएगा, मीन लिखूंगा तो मीन आएगा, मैक्स लिखूंगा तो मैक्स आएगा। तो पाइथन में जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो पुराने वाले कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। ठीक है, अब मुझे कोई एक बात बताओ कि जब ये सम मीन मैक्स मिनिमम में लिख रहा हूँ, ये बात तो ठीक है कि क्या बोलते हैं, वैसे आज का टॉपिक ही खत्म हुआ तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मिनिमम मैक्सिमम और मीन कुछ भी लिख रहा हूँ वो एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग कैसे काम कर रहा है। स्ट्रिंग पे तो कोई हम मतलब आउटपुट ले ही नहीं सकते ना, स्ट्रिंग तो वेरिएबल होता ही नहीं है ना, स्ट्रिंग फंक्शन होता है, फिर कैसे काम हो रहा है। जो बताएगा उसे +10 पॉइंट्स, ऐड कहाँ होंगे पता नहीं, पर +10 पॉइंट्स कि मैं तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम लिख रहा हूँ या फिर मैं तो यहाँ पे मीन सम ऐड लिख रहा हूँ, वो भी स्ट्रिंग में, जबकि स्ट्रिंग तो ना कोई वेरिएबल होता है ना ही स्ट्रिंग कोई फंक्शन होता है। क्या बोलो यार, थम्स अप और थम्स डाउन सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो यार, बोलो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगना, बाकी उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है क्योंकि यही मेन टॉपिक है लाइब्रेरीज का और कुछ नहीं है, यही इसीलिए हम लाइब्रेरीज पढ़ते हैं। किसी को नहीं मालूम, गैस थोड़ा सा गैस करो कैसा क्यों हो रहा है, कैसे एक स्ट्रिंग काम कर रही है एज ए फंक्शन। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपने खुद किया है। आप जब मैं कैलकुलेटर बनाने के लिए बोल रहा था फर्स्ट क्लास में, तब मैंने बोला था ना कि एक इनपुट लेना है जिसमें इनपुट में आपको लिखना है
आपको ये जो 2 इनपुट वैल्यूज दे रहे हो इसमें आपको सम प्रिंट करना है, ऐड प्रिंट सम करना है तो सम टाइप कर दो, और सब्ट्रैक्ट करना है तो एसयू टाइप कर दो, डिवाइड करना है तो डीआईवी टाइप कर दो। जैसे भी यूजर वो इनपुट देगा तो वो इनपुट का यूज करके वो ऑपरेशन कर देगा। याद है? कुछ आ रहे हैं याद? तो इन शॉर्ट जो भी हम देखो, प्री डिफाइंड फंक्शन है इसमें। ऑब्वियस सी बात है, लाइब्रेरी किसी ने कोड बनाया हुआ है, उस कोड में उसने कहीं पे एक जगह बड़े से कोड में एक बड़े से कोड में कहीं उसने लिख रखा होगा कि अगर कोई बंदा DISUM लिखे तो उसका कंसीडर करना है सम फंक्शन पे, कोई MEAN लिखे तो मीन पे कंसीडर करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही तो लाइब्रेरीज हम इसलिए तो यूज करते हैं कि किसी बंदे ने कोड लिख रखा है और ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, इसका मतलब लोग एड ऑन करते रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हो सकता है किसी ने, जिसने बनाया होगा उसने नहीं, किसी और ने ऐड किया होगा, उसने बोला होगा कि मीन जैसे ही कोई सेलेक्ट करेगा और ऑब्वियसली स्ट्रिंग की तरह ही इनपुट देगा, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये वाला फंक्शन है, आप इसको रन कर देना। इस फंक्शन को रन करने के बाद जो भी रिटर्न वैल्यू होगी, जो उसने डेटा डाला होगा उसमें रिटर्न मल्टीप्लाई बाय जो भी एक फंक्शन क्रिएट किया होगा। जैसे आपने कैलकुलेटर बनाते में एक इनपुट ले लिया यूजर से कि क्या करना चाह रहे हो, बट आपको टाइप ही तो करना होता है ADD। वो ADD क्या हुआ? ऐड। वो ऐड क्या हुआ? स्ट्रिंग हुआ। स्ट्रिंग हमने क्या लिया? एज एन इनपुट लिया, बट वो हमारे लिए क्या थी? कंडीशन। इफ कंडीशन इक्वल्स टू ऐड रिटर्न A प्लस बी, ये हमने कोड लिखा, यूजर ने वैल्यू डाली, उसको क्या मिल गया? A प्लस बी, लेकिन उसने सिर्फ ऐड लिखा। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है? हम यूज कर रहे हैं पांडास लाइब्रेरी, इसमें किसी ने लिख रखा है MEAN। जैसे ही ये कंडीशन ले लो, फिलहाल कंडीशन इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू MEAN, अगर ये वैल्यू बराबर होती है तो आपको मीन का रिटर्न दे देना है, मैक्स का रिटर्न दे देना है, सम का रिटर्न दे देना है। इसीलिए लाइब्रेरीज यूज करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। पांडास की लाइब्रेरी भी खोलना चाहोगे तब भी आपको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे आई होप कि अगर किसी ने पूछा होता, बट नहीं पूछा, गंदी बात है ये कि हम यहाँ स्ट्रिंग के साथ भी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आप इनको यूज करिए, देखिए क्या कुछ कर पाते हो। फिर हम थोड़ा सा एक्चुअली वापस मैं मूव ऑन कर दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम पाइथन ही पढ़ रहे हैं, हम पाइथन खत्म कर चुके हैं, हम पाइथन से आगे बढ़ के डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस पे आ चुके हैं। पांडास और नंपाई मतलब ही वही होता है, पर सारा कुछ पाइथन में तो आपको बता भी नहीं पड़ेगा। पाइथन उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन हमने ऊप्स खत्म किए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 लाइब्रेरीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, नंपाइज और पांडास खत्म। लेट मी सी, मैटप्लॉटलिब भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। मैटप्लॉटलिब और साइपाई एक ही क्लास में करने की कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, जिससे कि आपको डेटा का विजुअलाइजेशन भी मिल जाए कि बहुत सारा डेटा कैसे आप एक ग्राफ में डालोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। वेलकम, बाय।